السلام علیکم جی، میرا نام عمر جاوید قریشی ہے اور آج ہم بہت عرصے بعد گوہر صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سبجیکٹ کے اوپر جس کا نام ہے، نئی شو کے اوپر ٹیبو ٹاکس جس کا نام ہے، اور اس شو میں گوہر شریف اور ارم ارشاد آپ سے بات کریں گی، اور اوور ٹو یو مس ارم. Thank you very much. And I let me introduce myself to Gohar Saab's audience. I run this small center with the name of Center for Positive Psychology, and this center is basically a research center which tests certain well-being and happiness levels, and we design tools for gauging resilience and well-being among people. میں خود جو ہوں جی پازیٹیو سائیکالوجسٹ ہوں. میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہے, اینڈ فار پاسٹ 5 years آئی ایم انٹو کوچنگ کاؤنسلنگ, اینڈ آئی میٹ گوہر صاحب in a very unexpected manner. We just started sharing ideas, and we found that one after the other there is a lot of meeting of mind, and since then we are together. Then Gohar Saab actually launched life coaching کے اوپر ایک کورس انہوں نے لانچ کیا تھا. I was part of that course, so that's how we started. So Gohar Saab, would you like to introduce yourself to the audience? Thank you, Iram. My pleasure, like always. میرا نام گوہر شریف ہے. آئی ایم اے ماسٹر لائف کوچ. آئی ایم اے ماسٹر NLP کوچ. NLP کیا ہے؟ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، ماسٹر ہپنوٹسٹ اینڈ ریلیشن شپ کوچ. یہ میری جو سرٹیفکیشنز ہیں ساری کی ساری وہ رابرٹ شمک کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے ہیں. اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ لائف کوچنگ فار مینی ایئرز. ان فیکٹ میرا جو پہلا سرٹیفکیشن کورس تھا وہ 2003 میں تھا, آلموسٹ 18-19 ایئرز اگو. اور پاکستان میں نے 2017 میں لائف کوچنگ لانچ کی, اور سنس دین الحمدللہ آئی ہیو ڈن مینی ایونٹس, فل ڈے ایونٹس, ورک شاپس اینڈ مینی in the corporate sector as well. I'm not based in Pakistan, but I frequently travel to Pakistan most of the time, and my sessions are online as well. آج کا جو ٹاپک ہے, آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, اور یہ ٹیبو ٹاک کا جو سلسلہ ہے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر فورٹ نائٹلی اسی ٹائم پہ مور اور لیس ہم شروع کریں, اور ہر دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینٹل ویلنس, مینٹل ویل بینگ, مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے. اور ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں, پاکستان سے باہر بھی, یورپ, امریکہ مجھے اتفاق ہوا رہنے کا, کام کرنے کا, کینیڈا ایون, تو وہاں پہ تو لوگ ہیلپ لے لیتے ہیں کسی سے, کاؤنسلر سے کوچنگ لے لیتے ہیں, لائف کوچ سے. پاکستان میں ابھی تک اور کچھ ممالک میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایک سوسائٹی کا سٹگما بھی ہے, اور لوگ اس کے بارے میں متضاد رائے رکھتے ہیں. ایک تو جو بہت ہی پریویلنٹ رائے ہے اور جو لوگوں میں عام تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی بگڑے ہوئے نواب ہیں, رئیس ہیں, امیروں کے بچے ہیں, اور شاید یہ دین سے دور ہیں اور بے رہروی کا, اخلاقی بے رہروی کا شکار ہیں, اس لیے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. اور زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ یہ فیک کرتے ہیں, ایکٹ پٹ اپ کرتے ہیں, در حقیقت اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آج اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے ارم ارشاد سے کہ یہ پاکستان میں یہ سٹگما کیوں ہے, یہ اس پہ بات کرنا کیوں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, کوئی کسی کو کنسلٹ نہیں کرنا چاہتا, اور جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو ڈائریکٹ ہم پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس لینڈ کرتے ہیں, اور وہ پھر ہم اینٹی ڈپریسنٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جس میں ڈپینڈنس ہو جاتی ہے اینٹی ڈپریسنٹس پہ, اس پہ پھر ہم اگلے کو دھکیل دیتے ہیں. تو ان رویوں کی ہم بات کریں گے, ایٹیٹیوڈز کی, ارم ارشاد سے. جی ارم. ارم آپ کی آواز نہیں آ رہی شاید. میرے پیچھے.
सो थैंक यू वेरी मच. आपने बड़ा खूबसूरती से जो है वो अपना जो है वो टॉपिक एक्सप्लेन किया है और मैं अपने पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से इसको टेकअप करूंगी और जो थोड़ा बहुत मेरा कोचिंग एंड काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है वो अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगी. Somehow हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरली ड्रॉन है टुवर्ड्स परफेक्शन, और इस परफेक्शन का जो हमारे जहन में एक हमने एक इमेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है. हम प्रोजेक्ट भी ये परफेक्शन ही करना चाहते हैं. हमें लोगों के अंदर जो आजकल खासतौर पर सोशल मीडिया में एक परफेक्शन का एलिमेंट फिल्टर्स के ज़रिए से या जो है वो इंटरनेट हॉलीडेज की सूरत में जब भी कोई शख्स अपनी अचीवमेंट का सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करता है तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बेयर करना, और मेरी कोई अपनी वीकनेस जो है वो एग्रीवेट हो जाती है और मुझे उसका एहसास बढ़ जाता है. सो हमें ये जो सोशल कंपैरिजंस करने की वजह से हम अपने आप को फुली एक्सेप्ट नहीं करते. कार्ल रोजर्स जो है जिसको फादर ऑफ साइकोथेरेपी माना जाता है, ही डिस्कवर्ड के ज़िंदगी के परसूट्स बेतहाशा हैं, लेकिन जो सबसे मीनिंगफुल या इंसान के लिए रिवॉर्डिंग जो है वो कंट्रीब्यूशन या परसूट ऑफ लाइफ हो सकता है वो ये है कि आप अपने डार्क शेड्स को एम्ब्रेस करते हुए अपने जो एंजलिक साइड है उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको बाहर लाने में मदद कीजिए अपने जितनी भी आपकी डार्क शेड्स हैं. सो अगर आप किसी एक सूडो वर्ल्ड में रहते हैं कि गौहर शरीफ इज लाइक एंजल और इनके जो ग्रे शेड्स हैं, इनके जो डार्क शेड्स हैं वो नहीं हैं, इनके अंदर डीमंस नहीं हैं, मेरे अंदर भी डीमंस हैं, मेरे अंदर भी वीकनेसेस हैं, लेकिन हम इस परफेक्शन की वजह से अपने उस चैलेंज, उस एडवर्सिटी, उस तकलीफ को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते. जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसके साथ रिकंसाइल नहीं करते तो हमारा फोकस हमेशा हमारी लैक के ऊपर, हमारी वीकनेस के ऊपर रहता है. सो डिप्रेशन मेरे ख्याल में एक बड़ा नॉर्मल जो है वो नॉर्मल जो है वो एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स है. और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो हम सब की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है. कुछ स्ट्रेस जो हैं वो हेल्दी स्ट्रेसर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आते हैं कि अगर मैं स्ट्रेस ना लूँगी तो अपनी डेडलाइंस मीट नहीं करूँगी, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा नहीं करूँगी, रेगुलेट नहीं करूँगी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी. लेकिन अगर मैं ये वर्ल्ड व्यू रखती हूँ कि ज़िंदगी एक पैराडाइज लाइक है या एक परफेक्ट है या जिसमें हर वक्त खुश ही रहते हैं, तो ये जो खुद का मॉडल या लाइफ ओरिएंटेशन है इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं. तो मैंने अपनी जो कोचिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मैंने जिस चीज़ पे स्ट्रगल किया है वो ये है कि लोगों को ये समझाना कि एडवर्सिटी हर शख्स के साथ लाजमी तौर पर हो रही है, होती है. उसके चैलेंज का, उसकी सफरिंग, उसकी पेन का नाम कोई और हो सकता है, बट आप कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को कोई तकलीफ नहीं है. अब अगर एक बात तो ये है, अगर अब सबको तकलीफ है तो हम सबको उस तकलीफ को अटेंड करने के तरीके हम सबके फ़र्क है. सो और वो तरीके हम अपने बचपन में अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं. और अगर हमारा पैटर्न ये बना हुआ है कि हम खुद के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करें कि मेरे साथ फंडामेंटली कुछ गलत है, और मैं जब तक खुद की अपनी एक शेम की फीलिंग में रहूं, अपने एक गिल्ट की फीलिंग में रहूंगी, तो मैं कभी भी अपने उस डिप्रेशन में से बाहर नहीं आ सकूंगी. लेकिन अगर मैं उस तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ एक खास इवेंट के तौर पर देखूं और ये देखूं कि इस इवेंट, इस डिप्रेशन का जो ताल्लुक है वो सिर्फ एक खास सेगमेंट ऑफ माय लाइफ है, एंड बाकी जो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं, बेहतर चल रही हैं, उनको भी उतना ही वक़्त दूं, उन्हीं की वजह से उनसे एक अपने लिए फॉडर, अपनी एनर्जी लूं और अपने चैलेंज को फेस करूं. सो मेरे ख्याल में लाइफ ओरिएंटेशन अपनी ठीक करने की ज़रूरत है हमें, और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हमें पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. राइट, ज़बरदस्त. इरम ने जो बात की, अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इरम ने बात की स्ट्रेस की, एंजाइटी की और डिप्रेशन की. इनका लिंक क्या है? देखें, जब स्ट्रेस
persist करती है, in 70% of the cases it leads to depression. और जब depression हो जाती है, it leads to sadness, it leads to clinical depression, it leads to suicidal tendencies even. और anxiety जो है वो भी एक तकलीफ दे अमर है, इसलिए कि आप हर वक्त अगर anxious state में रहेंगे, stress आउट रहेंगे छोटी छोटी बातों पे, तो वो जो आपकी बॉडी में जो एंडोर्फिन्स बनने हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स बनने हैं, वो रिप्लेस होते जाएंगे कॉर्टिसोल से, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं पूरी बॉडी में, और आपका बॉडी का पीएच बैलेंस आउट हो जाएगा, और फिर आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं आहिस्ता 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 उस इंड्यूस्ड स्ट्रेस में स्टेट में रहने की वजह से इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंग्जाइटी क्यों होती है? जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक 55% ऑफ द एंग्जाइटी जो है वो सोशल मीडिया अपलोड्स की वजह से होती है। मैंने किसी जगह पे जाके कॉफ़ी पी तो मैंने पिक्चर पोस्ट कर दी, मैंने कहीं पे जाके रेस्टोरेंट में कोई चीज़ ऑर्डर की उसकी पिक्चर पोस्ट कर दी, मैं किसी अच्छी जगह पे गया, मैं वेकेशन पे गया, मैंने पिक्चर पोस्ट कर दी, शॉन्ज़ेलीज़े पे गया पिक्चर पोस्ट कर दी, जहाँ जहाँ मैं गया मैंने पिक्चर पोस्ट कर दी। तो वो तमाम मेरे दोस्त या वो तमाम लोग जो मेरे दोस्त नहीं भी हैं, वो रैंडम अगर वो कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो भी उन पिक्चर्स से इफ़ेक्ट होते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये देखो कहाँ फिर रहा है और हम कहाँ बैठे हैं। It's not about money or it's not about something, it's about being conveniently available। अगर किसी को कोई चीज़ है तो वो कर लेता है, दूसरा लेफ्ट आउट फील करता है। वो जो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है वो एनवी और जेलसी को एकदम से बढ़ावा देते हैं, एकदम से वो उनमें बढ़ जाती है लोगों में, एंड इट लीड्स टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस। दूसरी चीज़ ये है कि जो फेसबुक इट्स अ वेरी गुड यूज़फुल टूल, अगर आप उसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव में लें और अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आप यूज़ करें उसको एज अ टूल, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो उसके डाउन साइड हैं और उसके जो बुरे असरात हैं वो ये भी हैं कि फेसबुक इज़ नॉट अ फैक्ट बुक। मैंने एक सेल्फ़ी ली, पीछे कार किसी की खड़ी थी, मैंने सेल्फ़ी ली, घर किसी और का था। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक किस्म का एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करते हैं अबाउट मी। तो वो जब मैं मी डिफरेंट हो और मेरी रियलिटी मी की डिफरेंट हो फ्रॉम what was posted on the Facebook even last year or year before last, तो वो जो रिलेशनशिप्स में आके तनाव आ जाता है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मीटिंग समवन और वो विद द इंटेंशन टू कि ये आपका सोलमेट है। वो सोलमेट जो है वो डे वन से बेस्ड अपॉन एक फेक इम्प्रेशन पे जो बनता है वो बड़ा गलत बनता है। तो वो हम चीज़ें पोस्ट ना करें जो कि हमारे एक तो व्यूअर्स के उसमें पर्सपेक्टिव में एंग्जाइटी का सबब बने, और दूसरा हमें एक ऐसी लाइट में पोर्ट्रे करे जो हम नहीं हैं, और फिर एवेंचुअली उसका स्ट्रेन हमारी रिलेशनशिप पे आए। डिप्रेशन की बात की इरम ने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान में डिप्रेशन जो है ऑन द राइज है, और जो पाकिस्तान में लास्ट स्टैटिस्टिकल डाटा 2017-18 में जो गैदर किया गया था और जिसके जो है वो छपा भी था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में, उसके मुताबिक 35% जो डिप्रेशन है वो कराची में है, 45% डिप्रेशन जो है वो क्वेटा में है, और 55% जो डिप्रेशन है वो लाहौर में है। ये 2017-18 की बात हो रही है, एंड आई एम श्योर बहुत बढ़ गया उसके बाद, और स्पेशली आफ्टर कोविड वो जो कैबन फीवर है, जो state of uncertainty है, it has added on to it, people have lost their livelihood, people have lost their loved ones, बहुत सारे इस वक्त stressed out हैं लोग। ऑल्दो कि पाकिस्तान में मास्क फिर भी कोई नहीं पहनता, और धड़ाधड़ फंक्शन हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, और जो कसर रह जाती है वो गवर्नर हाउस में फंक्शंस हो जाते हैं कि अगर कोई बच गया शहर में तो उधर उसको ज़रूर कोरोना करवा के ही छोड़ना है। असेंबली में जफ्फियाँ डाल रही हैं,
भाई जो जीतना था जीत गया, जिसने हारना था हार गया, बाकियों को क्यों आप ये तोहफा दे रहे हैं? बट somehow other people are still not taking it seriously. पाकिस्तान में थर्ड वेव आ गई है कोरोना की, और इसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी इफेक्ट होगी, जो लोगों का लाइवलीहुड इफेक्ट होगा, और जो लोग स्ट्रेस में जाएंगे, इट विल फर्दर लीड टू डिप्रेशन. ये बातें हम इरम से करेंगे कि ये जो लॉकडाउन्स हैं और जी प्लीज. गौहर साहब, मैं ये कहती हूँ कि अगर तो मैं लोगों को तो नहीं कंट्रोल कर सकती कि वो अपनी सेल्फीज ना पोस्ट करें. बात ये है कि वो अपनी जरूर पोस्ट करें, जो उनका दिल चाहता है वो जरूर पोस्ट करें. मेरा उनकी तरफ रिएक्शन जो है ना, उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए. मैं क्यों अपने सेंटर से ऑफ बैलेंस हो जाऊं? मेरी खुद की कोई शिनाख्त होनी चाहिए. और जो मैंने अभी बात कही कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा हम खुद मानते हैं, मैं तो इस चीज की मानने वाली हूँ कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, हम सबको पता है जो हमने हासिल करना है. हमारी प्रेफरेंसेस ठीक नहीं है. आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं. मुझे बताइए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव खाने की जगह हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर बोतीक्स और कपड़ों की जगह हैं. यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो हम कहें कि जी ये यहाँ पर लोग जो हैं वो इनके सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स नहीं हैं मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने के लिए. हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो भी थोड़ी बहुत आपकी मेंटल हेल्थ पे इश्यूज आते हैं तो आप उसे कहते हैं कि उसको जो है ना वो टेम्पररी कोई कवर अप लगा लें, देख लो, जो है वो खाने पे चली जाओ. This is how we treat these mental problems. So हमारे यहाँ ये हमें healthy ways of coping और dealing with mental health नहीं आता. अंदर ही अंदर सामने हमारी नाक के नीचे हमारे loved ones जो हैं वो silently suffer कर रहे होते हैं. माँ बाप को अपने बच्चों का नहीं पता, पार्टनर्स को अपने स्पाउस का नहीं पता, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें लीडर्स काम कर रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉइज का नहीं पता. हम जानबूझ के जो है वो हमने अपने आप को डिसेंसिटाइज कर लिया हुआ है कि हमने लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करना. सो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते तो फिर कोई भी आपकी मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेगा. अब मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है फौरी तौर पर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए. आप अपने लिए ये अपनी लाइफस्टाइल में ये ऐड करें कि वो कौन से टॉक्सिक लोग हैं, वो कौन से टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स हैं जहां आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं. आपके नेगेटिव इमोशंस कौन से ऐसे हैं जो शेम से रिलेटेड हैं, गिल्ट से रिलेटेड हैं, और आपने उन्हें कभी अटेंड ही नहीं किया. आपने कभी उनके बारे में गौर फिक्र ही नहीं किया कि ये मेरे अंदर कौन से पैटर्न्स रोज के रोज बनते हैं. मुझे रोज गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं रोज सैड क्यों हो जाती हूँ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो जाती है. सो कहते हैं कि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है वो इंसान को सिखाती है. इंसान की डिजायर जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा टीचर साबित हो सकती है अगर आप सीखने वाले हैं. सो अगर लेट्स से आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप तरक्की क्यों नहीं कर पाते, तो आप अपने आप का कैथारसिस करेंगे. अगर किसी शय की मोहब्बत में आप मुब्तला हो गए हैं तो आप खुद को खंगालने की कोशिश तो करें. लेकिन हमने ये अपने लिए एक रख लिया है टैबू टॉक्स. आपने बड़ा अच्छा इसका टॉपिक रखा है कि ये टैबू सिर्फ सोसाइटी ने नहीं मना किया हुआ, अब हमारी खुद की भी ओरिएंटेशन यही रह गई हुई है कि हम खुद भी इस काम को करना नहीं चाहते. जो करने भी आते हैं वो इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि हमें कोई गोली दे दी जाए, गोली खाते ही हमारे जो जितने भी कॉग्निटिव इश्यूज हैं वो सारे के सारे जो है वो डिसॉल्व हो जाए. तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से जो है वो आपकी हीलिंग होती है, इस तरह से आपके पास्ट ट्रॉमास जो हैं वो रिकवर होते हैं या आपकी जो वुंड्स हैं वो हील होते हैं. ये बड़ा सीरियस जॉब है. जिस तरह आप समझ लें कि आप अपनी फिजिकल वुंड को जो है वो उसकी प्रॉपर स्टेजेस में उसकी हीलिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह आपके जो सोल के ऊपर, आपकी स्पिरिट के ऊपर जो वुंड्स हैं, आपकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल लाइफ एंड लैंडस्केप के ऊपर स्पॉट्स हैं वो ऐसे हील नहीं हो सकते. उसके लिए आपको सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी. अदरवाइज आप जिंदगी भर एक साइकिल के अंदर बार बार वहीं घूमते रहेंगे और फिर आप परेशान भी होंगे, डिप्रेशन भी आपको होगा. पहले आपको चैलेंज आया था उस टाइम आपने नहीं सीखा, अगली दफा चैलेंज बढ़ के आएगा, तीसरी दफा उससे भी बढ़कर आएगा.
تو آپ کو میں خاص طور پر ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں کہوں کہ ہم ایک ہمارا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم بلائنڈلی دوسرے رشتے کی طرف بھاگ جاتے ہیں, دوسرا ٹوٹتا ہے تو تیسرے کی طرف بھاگ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ میں کامن ڈینومینیٹر ہوں, میرے رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ارم نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت سارے ٹاپکس کو ٹچ کیا, اور اس میں انہوں نے سیریسنس کی اوپر بات کی, ایٹیٹیوڈز پہ بات کی. دیکھیں جب تک ہم لوگ مینٹل النس کو, مینٹل ویل بینگ کو ہم ایز سیریسلی ایز اے فزیکل النس نہیں لیں گے, تب تک ہمارے معاشرے میں یہ رویے رہیں گے. فرق جو امیر اور غریب میں ہے صرف اتنا ہے کہ جب غریب آدمی کو ڈپریشن ہوتی ہے یا اس کو کوئی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دورے پڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس پہ سایہ ہو گیا, اور اس کو وہ چنگچی رکشے میں بٹھا کے کسی پیر صاحب کے ڈیرے پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کے ڈنڈوں سے مار کے جن نکالے جاتے ہیں. اور کسی امیر آدمی کو جب اس کے فیملی ممبر کو ڈپریشن ہو جائے اور اس کو وہ اٹیکس ہوں, پینک اٹیکس ہوں, تو اس کو وہ سیدھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں. اب نقصان کیا ہوتا ہے اس میں, جو ارم نے بات کی سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے, نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انگزائٹی ہے, وہ جو آپ کو نروسنس ہے, ڈپریشن ہے, ان ساری چیزوں کا ان کے پاس ایک براڈ بینڈ علاج ہے, اور وہ لیکسا پرو ہے, وہ سیلیکس ہے, وہ لوویکس ہے, وہ لیکزوٹنل سے شروع ہو کے اور الٹیمیٹلی پروزیک پہ ختم ہوتی ہے. یہ جو گریجویشن سائیکل ہے, اس میں وہ ٹینڈنسیز جو ہوتی ہے سائیکیٹرسٹ کی, اللہ معاف کرے پاکستان میں تو وہ ٹائم بھی نہیں دیتے, 15 منٹ کے بعد وہ پرسکرپشن لکھ دیتے ہیں, پورا کیس بھی نہیں سنتے. بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ان کامنٹس کی وجہ سے وہ پرٹرب بھی ہوتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, بٹ دا فیکٹ از کہ آپ نے اگلے کی بات ہی نہیں سنی اور آپ نے اس کے سٹول پہ بیٹھتے ہی آپ نے پرسکرپشن لکھنی شروع کر دی. دس از ہائیلی ان ایتھیکل, ان پروفیشنل ہے. اب اس کو انگزائٹی ہے, اس کو ڈپریشن ہے, اس کو او سی ڈی ہے, اس کو کیا چیز ہے, اور اصل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا ٹریگر کیا ہے, سٹریسورز کیا ہیں, اس کا روٹ کاز کیا ہے. اگر آپ روٹ کاز نہیں ایلیمنیٹ کریں گے تو یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس کا نقصان ہوتا ہے کہ یو کیپ آن پاپنگ پلز, وہ آپ کو ایک پیلیٹیو سٹیٹ میں رکھتے ہیں, آپ کے ایگریسیوز نکل جاتے ہیں, ڈپریسیوز نکل جاتے ہیں, اینڈ یو آر لائک اے زومبی. آپ ایک پیلیٹیو سٹیٹ میں رہتے ہیں اور اسی میں مینٹین رہتے ہیں. ایوری 8 hours there is a cycle, you pop another pill, then you pop another one, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹھیک ہے یا بڑی ٹھیک ہو گئی ہے. وہ ٹھیک ہو گیا یا ہو گئی نہیں ہے, they are now being managed by the cycle of the intervention جو ہیں اینٹی ڈپریسنٹس ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے فیملی میں یا ہمارے حلقہ احباب میں کوئی شخص اگر سوشل آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, اس کا باہر جانے کو دل نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں باہر چلو, وہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے نہیں میں نے گھر پہ ہی ہوں, میں ٹھیک ہوں, آپ کہہ رہے ہیں چلو مووی دیکھ کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں باہر چلتے ہیں نہیں, and the person is confined to his or her bedroom or doesn't want to go out with friends or family members. یہ پہلے سائنز ہوتے ہیں کہ یہاں سے اب پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر ان کو بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا جو ان کی بات سنے وداؤٹ لیبلنگ دیم ایز کہ یہ تو کھسکا ہوا ہے یا کھسکی ہوئی ہے. تو وہ پھر اس شیم کی وجہ سے, وہ جو ارم نے بات کی, وہ اس وجہ سے وہ اس میں وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ جہاں پہ ان کو ایک لسننگ ایئر ملے, ایک کرائنگ شولڈر ملے, ان کو کوئی ایک ہیلپنگ ہینڈ ملے, اور ان کو وہ کسی لائف کوچ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائے کہ جو جا کے اس کی بات سنے اور روٹ کاز پہ جائے کہ واٹ از دا روٹ کاز. اصل میں وہ جو پرابلم ہے, از اٹ ریلیٹڈ ٹو آج کی, یا از اٹ سم تھنگ
जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं अर्ली चाइल्डहुड की 0 to 7 ईयर्स की एज, जिसको हम इम्प्रिंट एज कहते हैं। ये सारी बातें हम, मेरे ख्याल है कि ये टॉपिक इतना वसी है, इतना इस पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो टैबू है, और बात करते हैं इसी हवाले से इरम से कि इसको क्या किया जाए कि लोग जो हैं इसको एज अ टैबू लेना कम करें और इसको एज अ एक्सेप्टेंस लें, और वो जो कहते हैं इट्स ओके टू बी नॉट ओके, वो वाली बात कि हम कहें हाँ इट्स ओके टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स ओके टू सी अ लाइफ कोच एंड टॉक अबाउट कि माय मेंटल वेल बीइंग, हम क्यों नहीं कंसर्न होते? जी इरम। गौहर साहब, मैं दो बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ। डिप्रेशन एक्चुअली होता क्यों है? अगर इंसान की फितरत में ये है कि हमें रिलेशनशिप्स जो है ना वो हमारे लिए बड़े अहम हैं, और जितनी भी आप अक्रॉस द बोर्ड देखिएगा कि कभी भी हमें डिप्रेशन ऐसी चीज़ों पे नहीं होता जो हमारे लिए अहम नहीं होती। हमेशा डिप्रेशन उन्हीं चीज़ों पर होता है जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती हैं। और मैं चीज़ों से भी हटाकर अगर आपको कहूँ कि हमारे जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, ये जिनके ऊपर हमारी जिंदगी का पूरा जो फाउंडेशन है वो खड़ी होती है, वो पेरेंट्स होते हैं, फिर स्पाउस होता है और फिर बच्चे होते हैं। ये तीन आप कैटेगरीज ब्रॉडली लिख लें, उसके बाद फिर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपका पार्टनर है, वो सारे इसमें फॉल करते हैं। जिस शख्स के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन अटैच है वही बंदा मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन दे सकता है। अब मैं आपसे, आपने कहा ना कि उसे कहें कि वहां चला जाए, यहाँ चला जाए। मेरे अंडरस्टैंडिंग में हमने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमने लोगों के कम और अपनी खुद की प्रोजेक्शन ज्यादा बनाई हुई है। लेट्स से आपका और मेरा मेंटोर और मेंटी का रिलेशनशिप है गौहर साहब, तो मैं ये नहीं देख रही कि गौहर साहब एक्चुअली क्या है। मैंने खुद अपना एक प्रोजेक्शन, अपनी परसेप्शन गौहर साहब के बारे में बना ली है, और जहां जहां गौहर साहब अपने ओरिजिनल सेल्फ या एक्चुअली गौहर साहब नजर आएंगे मैं उन्हें माइनस करती जाऊंगी, विच मीन्स कि मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। एक और एनोलॉजी में अगर देखें तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप ने पहले से हर चीज, कमरे से लेके, नाम से लेके, घर से लेके, प्रोफेशन, करियर, सब कुछ उसके लिए एक पूरा बॉक्स बना के रखा हुआ है। उस बॉक्स में अगर बच्चा फिट नहीं होता तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, मेरे साथ किस्मत ने अच्छा नहीं किया। आपकी एक्सपेक्टेशन आपको बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिप्रेशन जनरेट कर रही है। दूसरी चीज जो हम ये कहें, कनेक्शन, हम सारे गौहर साहब कनेक्शन के लिए तरसते हैं, हम लॉन्ग करते हैं, हम सारे चाहते हैं कि हमारे ऐसे डीप रिलेशनशिप बने जहां हम अकेला महसूस ना करें। डिप्रेशन की दूसरी बड़ी इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही हम डिप्रेस होते हैं तो हमारी बड़ी जो उसमें पिटी की स्टेट होती है वो ये होती है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ। ये अकेला क्यों हो जाता है? जब आप अपने, आपके पूरी बड़ी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपका सारा कुछ है, बट अगेन आप उसमें मिसफिट फील कर रहे हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। अब अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि माँ बाप तो हैं लेकिन वो बॉक्स माँ बाप से पहले आ जाता है। मेरा पार्टनर तो है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे से पहले आ जाती है। मैं खुद अंदर से सफोकेटेड फील कर रही हूँ और मैं भी उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अपने ऊपर बहुत सारे मैंने फसाड जो है या मास्क चढ़ा लेती हूँ। जब जब आप लोगों को प्लीज करने के लिए अपने आप से दूर हो जाएंगे, अपनी ओरिजिनल सेल्फ से दूर हो जाएंगे, वो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ही कॉज करेगा, क्योंकि कोई भी शख्स दूसरे को खुश नहीं कर सकता। आई मीन देयर इज नो एंड कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है माँ बाप की पूरी हो जाए, पार्टनर की पूरी हो जाए या आपके बच्चों से पूरी हो जाए। यू नीड टू cut some slack for yourself and be courageous enough, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि अपने अंदर हिम्मत रखें और मान लें बचपन से लेके आखिर तक आप अकेले ही हैं। अगर कोई भी ताल्लुक मुसलसल है आपकी जिंदगी में तो वो आपका और आपके क्रिएटर का है, और जितने भी आपके नीचे रिलेशनशिप्स हैं वो सारे के सारे यूनिट्स में फॉल करते हैं। लेकिन अगर आपका खुद के साथ सेंटर ठीक है, आपके क्रिएटर के साथ सेंटर ठीक है, तो सारे डिप्रेशन, एंजाइटी आप मैनेज कर लेंगे।
انفارچونیٹلی یہ کام بھی پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ ہمیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی میں ایگزسٹ کرتا ہے. جب تک پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے لیے وہی ڈیمی گاڈز ہیں. میں ٹیبو ٹاک اس لیے کر رہی ہوں بیکاز جنرلی یہ آپ باتیں نہیں سنتے ہوں گے, ایسی اسٹریٹ فارورڈ باتیں آپ نہیں سنتے ہوں گے, بٹ آئی لائک ٹو کم ٹو دا ایسنس آف دی میٹر کہ یہ ہمارے سپرفیشل بیہیویئرز ہیں جس میں ہم ایک سوڈو ورلڈ کریٹ کر لیتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا پیرنٹ ہوں, میں تو بہت اچھی بیٹی ہوں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے پارٹ کے میس کیا ہیں, لیکن وی آر ناٹ ریڈی ٹو ڈیل ود دوز میسز. ہم چاہتے ہیں گوہر صاحب کے پاس جائیں, وائن کریں, تھوڑا بہت ادھر ادھر بلیم کریں اور پھر گھر آ کے سو جائیں. سو سیریس کام کرنے کے لیے we need to have the courage and courage to call a spade a spade. آپ سارے جانتے ہیں ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں, بچے بھی غلطی کرتے ہیں, اسپاؤس بھی غلطی کر سکتا ہے. آپ کے پاس اس غلطی کی معافی کی کتنی گنجائش ہے؟ آپ اس بچے کو کتنا امپرفیکٹ ہے وہ بچہ, آپ پھر بھی اس کو روم دیں کہ وہ میرا بچہ ہی رہے گا, وہ میں اسے ڈس آن نہیں کر دوں گی, وہ میری کوئی بھی بات نہ مانے میں پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں, وہ میری باکس میں فٹ نہیں بھی ہوتا پھر بھی میں اس کے ساتھ کھڑی. ہمیں آل انکلوسیو دنیا, سوسائٹی, انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہر بندہ اپنی اپنی یونیک سیلف کے ساتھ ایکسیپٹڈ فیل ہو. ایسا ہاؤس ہولڈ بنائیے, ایسے گھروں میں پرورش دیں سب کو جس میں ڈاکٹر انجینئر کوئی نہیں بھی بنتا تو پھر بھی اسے انسان بننے کی اجازت دے دیں, اسے غلطی کرنے کی اجازت دے دیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اور غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کو اصرار کر رہی ہوں کہ جو ہے انہیں ڈسپلن نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ضمیر کے صورت میں آپ سب کے اندر ایک خود کا ہی آٹومیٹک جی پی ایس سسٹم رکھ دیا. جب جب کوئی بھی شخص برا کام کرتا ہے اس کے کانشینس سے آواز آتی ہے کہ یہ اس نے غلط کام کیا. یہ ہر وقت ماں باپ کو ڈنڈا لے کر ان کے سر پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اس صورت میں جب ہم ایکسیپٹڈ ہوں گے نا گوہر صاحب, تو میں اپنی دل کی بات کہنے میں کوئی بار محسوس نہیں کروں گی. میرا اسٹریس ڈپریشن ہوگا بٹ میں آ کر واپس ماں باپ کو بتاؤں گی, اپنے پارٹنر کو بتاؤں گی یہ میرا ورک پلیس پہ اسٹریس ہے, یہ میرا پرسنل لائف میں اسٹریس ہے. ہم سارے اپنی اپنی جگہوں پر اکیلے لڑ رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں اسٹریس ڈپریشن اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس لیے ہم سوئسائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہیں بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. I mean we all want to in some stage or some phase of our lives we want to kill ourselves because ہمیں لگتا ہے کہ this is too much to handle, یہ pressures, یہ expectations. So please جو ہمیں سن رہے ہیں اپنے لیے بھی کم ایکسپیکٹیشنز رکھیے اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ان کا اصل رنگ ہے اس میں دیکھیں, نہ کہ اس رنگ میں دیکھیں جو آپ نے سوچ لیا کہ میرا پارٹنر ایسا لگنا چاہیے. فوری طور پہ آپ انہیں ٹویکنگ شروع کر دیتے ہیں, بیٹا ہاں آپ اچھے لگ رہے ہیں, اگر وہ شرٹ پہنے تو وہ زیادہ آپ اچھے لگیں. سو انہیں خود چوائس کو ایکسرسائز کرنے کی کانفیڈنس دیں, انکریج کریں. بچیوں کو خاص طور پر انکریج کریں کہ وہ اب یہ جانیں کہ اپنی چوائس کیسے لیتے ہیں. اب دیکھیں ساری زندگی بچی نے کبھی چوز ہی نہیں کیا اپنے لیے, ایک دم سے اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ جی اپنا کریئر چوز کر لو یا اپنا پارٹنر چوز کر لو, شی وونٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ بیکاز اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور کانفیڈنس ہمیشہ غلطی سے آتا ہے. آپ غلطی کریں گے تو صحیح شارٹ تک پہنچیں گے. آپ کو 10 غلط شارٹس لگیں گی تو ایک صحیح شارٹ پہ بھی پہنچیں گے. وہ 10 غلطیوں کا مارجن کون دے گا, دیٹس دا کوشچن. بالکل صحیح. ارم جو آپ نے باتیں کی وہ ہمارے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے جو ہمارے اس وقت معاشرے میں ہے, ہماری سوسائٹی میں ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بچے اس پریشر کے انڈر کرمبل کر رہے ہیں. میرے پاس جب میں لاہور میں تھا ان 2017 18 19 کے مڈ میں واپس آ گیا تو بہت سارے بچے میرے پاس آتے تھے, پیرنٹس لے کے آتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ ایٹ دا ایج آف 10 11 اور 12 جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا اور رات کو ڈر جاتا ہے, واش روم میں نہیں جا سکتا اینڈ تھنگز لائک دیٹ, بیڈ بیٹنگ کر رہا ہے. تو ان پہ جب میں دیکھتا تھا تو وہ سٹریس اتنا زیادہ ہوتا تھا
कि इतने एज लेके आने हैं, इतने, देखें ये इम्पॉर्टेंट है ए लाना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, वो मेंटली स्टेबल हो, स्ट्रांग हो और कॉन्फिडेंट हो, वो ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखें एज जो हैं वो उस डिटेल्ड मार्कशीट तक ही रह जाएंगे, कल को जब उसने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाना है तो उसको फर्स्ट इंटरव्यू के बाद कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने थे, उसके बाद उसकी सोशल स्किल्स, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी वर्किंग विद पीपल, वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इरम ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की, स्ट्रेस की बात की। दुनिया में जो रिकॉर्डेड डिप्रेशन की वजह से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लो प्रोडक्टिविटी है, इट हैज़ बीन मेजर्ड अप टू $3 ट्रिलियन का इफेक्ट है ओवरऑल वर्ल्ड में। पीपल आर लेस प्रोडक्टिव when they are not happy, when they are depressed, when they are stressed out. हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, फैमिली मेम्बर्स को हम स्ट्रेस रिजिलियंट बनाएं। इसके लिए न्यूरोबिक्स एक चीज़ है जो कि मैं कराता भी हूँ, इरम की भी फील्ड यही है, पॉजिटिव एनर्जी की और पॉजिटिव साइकोलॉजी की, कि हम लोगों को ट्रेन करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं काम करता हूँ, मैं टीम्स को ट्रेन करता हूँ हाउ टू डू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक्स, उधर जो प्रेशर होते हैं वो टीम्स किस तरह से हैंडल करें और प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे डिसीजन लें, ये इम्पॉर्टेंट होता है। वो 7 A's आए हों या 8 A's आए हों, nobody bothers कि आप आईवी लीग से पढ़ के आए हैं या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं। इफ़ यू कैन नॉट टेक दोज डिसीजन इन अ प्रेशर सिचुएशन, वो आपकी डिग्री दीवार पे ही टंगी रह जाएगी, यू विल नॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम आज की जो टॉक है इसका इख्तिताम करने के हम उस मरहले में दाखिल हो गए हैं जहां इरम से हम पूछें कि लोगों को स्ट्रेस रेजिलिएंट बनने के लिए क्या करना चाहिए। इरम उस पर कोई थोड़ी रोशनी डालिए। मैं तो यही कहती हूँ कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। सारा इमोशन, फीलिंग और बिहेवियर आपके बिलीफ से निकलता है। अगर आप अपने बिलीफ्स को थोड़ा सा री इवेलुएट कर लीजिए अपने लिए भी और अपने आने वाली लाइफ के लिए, तो आई थिंक हम बहुत सारे अपने अंदर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रेजिलियंस पैदा कर सकते हैं। और वो ये है कि एक तो लाइफ ओरिएंटेशन पॉजिटिव रखें, अच्छे की उम्मीद रखें और ये समझ लें कि दुनिया आपके अगेंस्ट नहीं है और सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं उसमें खासा हिस्सा आपके खुद के बिहेवियर का भी है। बाहर जो भी चीज़ें हैं, लोग भी हैं, उनके भी अपने डायनामिक्स हैं, मैं उनको भी मानती हूँ, बट हम बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा आपके कंट्रोल में है। आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आप चेंज कर सकते हैं। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट करेंगे, फोकस करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप ज़रूर कोच भी हायर करें अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। साइकोलॉजिस्ट के पास भी ज़रूर जाइए। जिस तरह आप खाते पीते हैं और उसके ऊपर आपका एक बजट बनता है, इसी तरह अगर आपको लगता है कि मैं खुद से अकेले अपनी मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई आप पागल नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप अपने लिए बेहतर लाइफ चुन रहे हैं। एक तो अपनी लाइफ ओरिएंटेशन ठीक रखें। फिर अपने लाइफ स्टाइल में मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में रिसर्च एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का जो दोनों का को रिलेशन है उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और एक जो साइकाइट्री का पूरा एलिमेंट है वो आने वाले फ्यूचर में शायद वो उतना फंक्शनल ना रहे जितना कि फिजिकल फिटनेस या हेल्थ जो है वो आपकी मेंटल वेलबींग को एक इंस्टेंट बूस्ट देती है। कोशिश करें हल्की फुल्की वॉक करें, मॉर्निंग इवनिंग जो आपको सूट करता है। थोड़ा बहुत आप अपने लिए उससे, जब आपकी फिजिकल स्टेट बदलती है तो उसके ऊपर आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर भी आपका इफेक्ट होता है। हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, आपकी फोकस बढ़ता है, आपकी लाइफ की तरफ जो जेस्ट है वो बढ़ती है। एक्सरसाइज करें। और तीसरी चीज़ जो आखिरी है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि
اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایشو ہے تو اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہے, چیلنج بھی آلریڈی وہاں موجود ہے. کوشش کر کے اس جواب تک پہنچیں. بلیم نہ کریں کسی کو بھی کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, دنیا نے یہ کیا, قسمت نے یہ ہوا. یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں لے کر نہیں جائیں گی. اگر آپ واقعتاً ہی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سیکھیں. And thank you very much, Gohar Saab, for giving me this opportunity to speak my heart out. تھینک یو ویری مچ ارم. میں اینڈ میں صرف 5 منٹ لوں گا. جو ارم نے بات کی اسی چیز کو ریپ اپ کرتے ہوئے, جب ہم کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا پیشن انوالو نہیں ہوتا, جس میں ہماری ڈیپسٹ ڈیزائرز نہیں ہوتی, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹسفائی سم ون ایلس, اور ہم اس کے کنفائنس کے مطابق ہم ایک زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ ہمارے پیرنٹس ہوں, خواہ وہ ہمارے اسپاؤسز ہوں, خواہ ہم سوسائٹی کی وجہ سے کر رہے ہوں, تو اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں کئی پلینز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کئی پلین سے ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے انفارمیشن پروسیس ہو کے آتی ہے. ایک مینٹل ہے, ایک اسپرچول ہے, ایک ایموشنل ہے. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر آپ نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کیا اپنے کمپیوٹر پہ, آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور آپ کو لگا کہ اس میں ایک غلطی ہے یا 2 غلطیاں ہیں, تو اگر آپ پرنٹ آؤٹ کے اوپر کوئی کریکشن کرنے کی کوشش کریں, کوئی اریزر سے کریں, بلینکو لگائیں, وائٹو لگائیں, اس کے بعد دوسری دفعہ پرنٹ آؤٹ نکالیں پھر بھی وہی پرابلم ہوگی, تیسری دفعہ نکالیں پھر بھی وہ پرابلم ہوگی. وہ پرابلم سالو کہاں پہ ہوگی؟ اگر وہ مینٹل لیول پہ ہے جس کا تعلق تھاٹ سے ہے, آپ سوچتے رہتے ہیں, پروکریسٹینیشن کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو وہ پرابلم وہاں پہ جا کے فکس کرنی ہے. اگر اس کا تعلق اسپرچول ورلڈ سے ہے جہاں پہ آپ نے سلسلہ بگاڑا ہوا ہے یا سلسلہ منقطع ہے, وہیں پہ آپ کو جا کے جوڑنا پڑے گا وہ اسپرچول ورلڈ میں سلسلہ جا کے, تاکہ آپ کو وہاں سے ملے فیڈ بیک. اور اگر یہ ایموشنل لیول پہ ہے تو کسی کا گھر اجاڑ کے, کسی کے ساتھ برائی کر کے, کسی کا دل دکھا کے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے گا تو یہ آپ کی غلطی ہے. تو تب یہ تمام باتیں جب آپ کر رہے ہیں تو ان کے ریزلٹس کے لیے بھی تیار رہیے. کاز اینڈ افیکٹ ہے یہ ورلڈ جو ہے, اٹ از آل اباؤٹ کاز اینڈ افیکٹ. جو آپ کاز کریں گے وہی افیکٹس ہوں گے, جو کاز کریں گے وہی ریزلٹس ملیں گے. تو مجھے اور ارم ارشاد کو آج اس ٹیبو ٹاک سے اجازت دیجیے. نیکسٹ فورٹ نائٹ پہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے اسٹگما پہ, ایک نئے ٹیبو پہ بات کرنے کے لیے. تب تک اجازت دیجیے مجھے اور ارم ارشاد کو. تھینک یو ویری مچ.